अच्छा जी, लेट्स स्टार्ट। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आई शेयर द स्क्रीन विद यू ताकि आपको पता चले कि व्हाट वी आर गोइंग टू डू राइट नाउ। अहमद हामिद, ओके जी, ऑलराइट। नाउ who is with us? Can I have a name? Omar is with us, and Ahmad Yes, sir. Hamid. Ahmad Hamid is here. Okay, all right. Ahmad Hamid is from which class? Assalamu alaikum, sir. I'm Walaikum Ahmed Salam. Hamid. Ahmad from which class, boy? O1 B. Oh, 1B. All right. ठीक है बेटा, let's start. Bismillahirrahmanirrahim. Well, beta, as we discussed, this is our, I will say, revision sort of thingy, in which we'll discuss Yes, sir. about momentum. ठीक है बेटा? So, Yeah. first I'll Yes. give you an idea, how does it, the thing goes. So, let's start Yes. here. इसको मैं start करता हूँ बेटा. Can you see the screen? Both of you can see the screen? Yes, sir. All right. Yes, So, sir. beta, the topic that we're going to cover today is momentum. ठीक है जी. Since this slide was made for some other syllabus, तो वहां पे इसका chapter 12 था, so that's why I didn't change it. So ये momentum is the topic that we're going to Okay. discuss. Now we'll discuss what we'll discuss in that. We'll discuss the definition of momentum, the formula of momentum, and the question based on momentum. Right? Along with that, we'll Yes. discuss the law of conservation of momentum की बात करेंगे बेटे हम इसके अंदर. और उसके बाद हम बात करेंगे फोर्सेस की और मोमेंटम के कनेक्शन की, कि how force is connected with momentum, right? And we'll discuss about the impulse of force and change in momentum and all that. All right? Yes, sir. Okay, ji. Yes, sir. So let's proceed. First of all, that thing that is important to us is the syllabus. That the syllabus that you can appear in the exam in CIE is this. What the CIE needs from you is that you should know the definition of momentum, and you should be able to use this equation in your questions, in your numericals and your problems, right? And Cambridge also needs you to define impulse. You must know the definition of impulse, and you should also be able to use that equation in your solutions. Okay. Cambridge Okay. also needs that you must know about the law or the principle of conservation of linear momentum, and you should be able to solve questions based on this law, but you are restricted to one dimension only. Two dimension is in A levels, and three dimension is in the higher university levels. ठीक है जी? Now, last but not the least is the redefining of the force. अभी तक हमने जो न्यूटन सेकंड लॉ में पढ़ा था, that was force is equal to ma, right? What we studied over there, हमने जो पढ़ा था वो कुछ इस तरीके से था कि F was equal to ma. Am I right? Yes, sir. लेकिन अब जो फोर्स पढ़ने चाह रहे Yes, हो, sir. दैट इज अ डिफरेंट, दैट इज दिस थिंग. या अब वाली फोर्स आप पढ़ने चाह रहे हो, F इज इक्वल टू डेल्टा P ओवर डेल्टा T. ऑलराइट, इज इट ओके बॉय? Yes, sir. Yes, sir. ऑलराइट, so we go further. हमने यहाँ इसको रोका. अच्छा, any problem so far? Any problem so far? No, sir. Alright, No, sir. आगे चलते हैं बेटे. Now, the terms, the vocabulary that you will encounter in this chapter is that you will get across the word momentum, you will come across the word linear momentum, angular momentum, and all that. Now, momentum will define, I mean, in a short time. Linear का मतलब होता है बेटा in a straight line. ठीक है जी? When the objects are moving in a straight line, तो उनका momentum जो है वो linear momentum कहलाता है. This is in our syllabus. एंगुलर मोमेंटम जो है ये एपी और आईबी के सिलेबस में मौजूद होता है, और ये हाई लेवल पे आता है, ए लेवल्स के बाद आता है. ठीक है जी? ये मतलब हाई ग्रेड्स पे आता है. इसमें होता है कि जो सर्कुलर ऑब्जेक्ट्स हैं, द ऑब्जेक्ट विच आर मूविंग इन सर्कल, या एंगुलर जो मूवमेंट जो कर रहे हैं, उनका मोमेंटम क्या होगा. दैट्स अ हाई लेवल सिलेबस, वी विल नॉट डिस्कस दैट. लॉ ऑफ कंजर्वेशन मोमेंटम की बात करेंगे यहाँ पर. विल डिस्कस द वर्ड कोलिजन, टकराना, राइट? So collisions are of two types: elastic collision and inelastic collision. Detail is not in our syllabus, that is in A level, so हम इसको ज्यादा डिटेल में नहीं जाएंगे. ठीक है जी? इम्पल्स की हम बात करेंगे, काइनेटिक एनर्जी की बात करेंगे. These are the terms that we'll discuss here. Okay जी, first of all, जो मोमेंटम की बात की जाती है, तो there is an investigation question कि
what is momentum and what are the characteristics of momentum, or what are the properties associated with momentum. So let's discuss them one by one. Okay. So here we go. Momentum is a property of moving matter. Momentum is what? It is the property of moving matter. Property of moving. Yeah. And what is matter? We know that anything that has mass and occupies space called matter. Yes, sir. Definition is matter Yes, ki everything that has mass and occupies space will be termed as matter. तो इसका मतलब ये कि matter is associated Yes. with the mass. हम ये कह सकते हैं कि matter जो है, it is actually, let me do it again. Okay. So matter is directly proportional to mass. We can say like that, isn't it? So it means Yes. momentum and mass both are directly related to each other. So we can say momentum is the property of moving mass. When masses Okay. move, with a velocity, we say that they have momentum. जब भी कोई ऑब्जेक्ट मूव करेगा तो उसके मास और उसके वेलोसिटी के हिसाब से हम कहेंगे कि द ऑब्जेक्ट हैज मोमेंटम. ऑलराइट. Yes, sir. अच्छा, मोमेंटम कहता क्या है, बताता क्या है? मोमेंटम एक्चुअली describes the tendency of an object to keep going in the same direction with the same speed. That is, it's an urge. Urge यानी कि याद है आपको न्यूटन फर्स्ट लॉ में डिफाइन किया था that an object in a state of rest will remain at rest and object in a state of motion will continue its motion. Yes, yes, sir. ठीक है ना? तो उसका जो बता ना मोशन वाला पार्ट वो यहाँ पर जस्टिफाई हो जाएगा कि इट इज एन अर्ज ऑफ एन ऑब्जेक्ट. हर ऑब्जेक्ट चाहता है, जो भी ऑब्जेक्ट मूव कर रहा है वो चाहता है कि अपनी मोशन को मेंटेन करे, सेम डायरेक्शन में सेम स्पीड मूव करता रहे. बट ऐसा होता नहीं है. ऐसा होता नहीं है. राइट. यू किक अ बॉल, तो बॉल जो है थोड़ी बहुत स्लो हो जाती है. ऐसे होता है ना. Yes, yes, yes. So why it becomes slow? Why the momentum change? Momentum changes due to some force which can be taken as a resistive force, opposing force, or any other thing, right? So change Like in momentum. Sorry? Like air. Yeah, like air, like friction. ठीक है ना? So these are the resistive forces. So change in momentum मेरा बेटा. I'm sorry, मैं इसको रब कर दूं, मेरा हाथ टेढ़ा हो गया. Alright. So we were saying change in momentum की बात करें बेटा हम. That is change in momentum. यहां से लेकर यहां तक की वर्ड की बात कर रहा हूं. Change in momentum, right? So change in momentum results from forces or create forces. That is either object जो है बेटा उसका जो है वो momentum जो है या तो चेंज होगा फोर्स की वजह से, या फिर वो फोर्स जो है वो मोमेंटम लाइक हियर मोमेंटम जो है, चेंज इन मोमेंटम जो है इधर वो फोर्स को कॉज करेगा या फोर्स की वजह से होगा. गॉट इट? ओके. या तो कोई फोर्स जो होगी वो मोमेंटम को चेंज करेगी, या फिर इट वुड बी समथिंग लाइक या तो कोई फोर्स मोमेंटम को चेंज करेगी. अच्छा, जस्ट लेट मी चेक इफ समवन इज देयर और नॉट. एक चीज चेक कर लूं, अगर कोई और तो नहीं आया ना मतलब. नहीं सर. हाँ बस ठीक है, मैंने ये देखना चाह रहा था कोई और तो नहीं आया ना. keep 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 keep. All right, so you are here. All right, go back from the first slide. Okay, so back again. Now we say that either force will cause a change in momentum or a change in momentum will create a force. Both the things. Now बेटा मोमेंटम हमारे सिलेबस में जो है, बल्कि रियल लाइफ में जो है, वी ऑब्जर्व इन टू वेज. we observe momentum in two ways. Either हम देखते हैं objects are colliding with each other, दो ऑब्जेक्ट टकरा रहे हैं आपस में, and that's a real life example. हम देखते हैं हम क्रिकेट खेल रहे हैं, बॉल जो है बैट से टकरा रही है. ठीक है जी. टेबल टेनिस खेल रहे हैं, रैकेट जो है वो बॉल से टकरा रहा है. बैडमिंटन खेल रहे हैं, शटल जो है रैकेट से टकरा रही है. राइट. दो लोग भाग रहे हैं, टकराए आपस में, तो पर्सन पर्सन से टकरा रहा है बेटा. कार जो है वो वैन से टकरा रही है. तो कोलिजन इज इन डेली लाइफ. कोलिजन हमारा डेली लाइफ में होता है, हम देखते रहते हैं. इजंट इट? ऐसे ही ना? Yes, sir. Yes, sir. Alright. So one thing is the collision. One thing is what? The collision. And second thing is what बेटा? Second thing क्या है कि when explosion breaks, जब explosion होता है, that is what is explosion?
हम कहते हैं कि एक्सप्लोजन से मुराद है कि चीज का टूटना, मतलब टूट के फ्रेगमेंटाइज होना। लाइक मैं ऐसे बात करता हूँ कि आपके पास एक ऑब्जेक्ट था, वो एक्सप्लोड हुआ और वो टूट के मुख्तलिफ सेगमेंट में टूट गया, इसमें टूट गया, इसमें टूट गया, राइट। सो ये क्या कहलाएगा? ये एक्सप्लोजन कहलाएगा, राइट। मतलब एक Yes. चीज टूट के दो और मोर चीजों में टूट जाए, दिस इज वन वे। या फिर और अ पुश ऑब्जेक्ट्स अपार्ट, दैट इज आप क्या करते हो बेटे? आप एक गन लेते हो, आप एक गन लेते हो और आप गन से फायर करते हो। जब गन से फायर करते हो तो क्या होता है? ये आपके पास गन थी बेटा, आपने यहाँ से फायर किया, Yes. ठीक है जी, ये आपने यहाँ से फायर किया तो बुलेट जो है वो कहाँ जाती है? फॉरवर्ड जाती है, बुलेट फॉरवर्ड जाती है, राइट। तो क्या होता है? बुलेट इस तरफ जा रही है मेरा बेटा, और गन जो है वो इस तरफ जा रही है, इजंट इट? Yes, sir. ऑलराइट। जो फोर्स हमारे आर्म पे लगती है। हाँ, तो दिस इज आल्सो एन एग्जांपल ऑफ Force. टाइप ऑफ एक्सप्लोजन, दिस इज आल्सो टाइप एग्जांपल ऑफ टाइप ऑफ Extra. एक्सप्लोजन। इज इट क्लियर? यस सर। Yes, sir. आगे की बात करते हैं बेटा। इसके बाद हमारे पास आती है डेफिनेशन ऑफ मोमेंटम। ये डेफिनेशन आपके पास, मैंने आई हैव टोल्ड यू इन द क्लास कि मोमेंटम ऑफ एन ऑब्जेक्ट इज डिफाइंड एज द प्रोडक्ट ऑफ इट्स मास एंड इट्स वेलोसिटी। पता है ना हमें बात? Yes. Right. So, and is represented by the equation P is equal to m into v. Now, P, what is P here? Mind it, बेटा ये कैपिटल P Momentum. नहीं है, हाँ ये कैपिटल P नहीं है, स्मॉल p है, राइट। तो स्मॉल Okay. p हमेशा मोमेंटम होगा बेटा, स्मॉल m जो है वो मास होगा बेटे, और स्मॉल v जो है बेटा वो वेलोसिटी ऑफ द ऑब्जेक्ट होगा। सो फॉर ओके? Yes. ओके। Okay, sir. यस सर। मोमेंटम हैज टू यूनिट्स। कितने यूनिट मोमेंटम के हमारे पास? दो यूनिट है। Two एक, units. हाँ, एक है किलोग्राम मीटर पर सेकंड और दूसरा है न्यूटन सेकंड। चॉइस इज योर्स। आप इसमें एसआई की यूनिट की बात करेंगे, मोस्टली हम लोग केजी मीटर पर सेकंड लिखते हैं, लेकिन अगर आप मीटर पर सेकंड न्यूटन इंटू सेकंड लिखें तो भी चलेगा, राइट। सर न्यूटन का भी तो ऐसा यूनिट केजी होता है ना? नहीं नहीं, मास का होता है बेटा केजी, हाँ, मास का। मास का केजी होता है, राइट। आगे चलते हैं बेटा। सर आपने अच्छा, क्लास में बताया था हाँ बोलो। कि वो पी के ऊपर जो होता है एरो होता है। कमिंग ऑन दैट, कमिंग ऑन तो दैट, ये आ गया इसके ऊपर आ गया। मोमेंटम के कुछ फैक्ट्स बेटा। Momentum P is equal to mass into velocity. There's an arrow on P which shows that momentum is a vector quantity. And why it is a vector quantity? Because velocity is also a vector quantity. यस ठीक है। और जो डायरेक्शन बेटा वेलोसिटी की होगी वही मोमेंटम की होगी। अगर वेलोसिटी फॉरवर्ड डायरेक्शन में है तो मोमेंटम भी फॉरवर्ड में होगा। इट्स ओके? ओके सर। जी, एसआई यूनिट बेटा वही हमारा किलोग्राम मीटर पर सेकंड। देयर इज नो स्पेशल नेम लाइक न्यूटन, पास्कल वास्कल, ऐसा कोई नाम नहीं है इसका। वी जस्ट राइट किलोग्राम मीटर पर सेकंड। अच्छा, मोमेंटम इज अ कंजर्व्ड क्वांटिटी। व्हाट इज मेंट बाय कंजर्व्ड? इसको बाद में हम देखेंगे, लेकिन इसे इतना समझ लीजिए कि अनचेंजेबल, ठीक है ना, जो चेंज ना हो। ओके अच्छा जी, अ नेट फोर्स इज रिक्वायर्ड टू चेंज बॉडीज मोमेंटम। किसी भी ऑब्जेक्ट का मोमेंटम चेंज करना है तो आपको फोर्स चाहिए, फोर्स से ही मोमेंटम चेंज हो सकता है। इज इट क्लियर? यस सर। ऑलराइट, उमर बेटा आपको समझ में आ रही यस बात? जी सर। Alright. The momentum of a ball depends on its mass and velocity. Now we have two examples. We have a ball A and ball B. Ball A का बेटा मास था 1 kg and स्पीड थी 1 मीटर पर सेकंड। B बॉल का भी मास 1 kg था लेकिन उसकी स्पीड 3 मीटर पर सेकंड थी। तो आपके ख्याल में क्या बोथ विल हैव द सेम मोमेंटम? नो। No. Which will have more momentum? बी B. Why B Ball B. बेटा? Why B? बिकॉज द स्पीड ऑफ बी इज मोर Very देन good, very good. Because the speed of B, Ashir, welcome boy. Because the speed of B जो है is greater than that of A. तो हम कहेंगे ball B का momentum is greater than that of A. Clear voice? यस सर। All right, go to the next one. All right, यस momentum. अच्छा, we discuss this one. Momentum and inertia. Who is this one? Rohel. अच्छा, अब आया है. Okay जी. Momentum and inertia. Now, inertia is another property of mass that resists change in velocity. We have discussed this thing earlier while we were in the class. I told you that inertia is the tendency of an object to resist a change in its state of motion. यानी कि कोई भी ऑब्जेक्ट
अपनी स्टेट ऑफ मोशन या रेस्ट को चेंज करने से मना करता है, रेजिस्ट करता है। एंड वो रेजिस्ट क्यों करता है? बिकॉज ऑफ इट्स मास। जितना मास ज्यादा होगा उसका इनर्शिया ज्यादा होगा, इजंट इट? यस सर। सर इनर्शिया होता क्या है? इनर्शिया इनर्शिया कहते हैं सुस्ती को, रिलक्टेंस को। यार जी नहीं चाह रहा, कहते हैं हम लोग, बे यार जी नहीं चाह रहा। सो दैट जी नहीं चाह रहा इज इनर्शिया एक्चुअली। सर किसी भी फोर्स को उसकी मतलब उसको जो है रोकती है ये। हाँ, इनर्शिया सर फोर्स को तो अपोज करता है। इनर्शिया ट्राइज टू अपोज द फोर्स, ठीक है ना? ओके। ऑब्जेक्ट का जो सर जितना ज्यादा इनर्शिया, मास होगा उतना ज्यादा एनर्जिया। बिल्कुल उतना ही ज्यादा इनर्शिया होगा। क्लियर है? तो सर मतलब जितने वो वजन होएगा उतने ही ज्यादा इनर्शिया होगा, मतलब जितना 50-50 होती है। मास जितना ज्यादा यस। होगा बेटा उतना इनर्शिया होगा। मास, इनर्शिया इज ए यस। स्केलर क्वांटिटी। इनर्शिया इज व्हाट? Scalar quantity. Okay, we ओके have सर। Rohel here. Rohel है हमारे पास। या। Rohel, can you hear me, boy? Yes, sir. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Walaikum salam, बेटा। Walaikum assalam. We have Hashir with us. Hashir, can you hear me, boy? Hashir, आपको मेरी आवाज आ रही है बेटा? यस सर, आ रही है। Okay, that's great. Hello. आपको स्क्रीन क्लियर नजर आ रही है बेटा आपको? यस सर। और that's great. सर इसको लिखना ही क्या? नहीं नहीं नहीं, ये आपके अंडरस्टैंडिंग के लिए बेटा, ठीक है? अच्छा, इफ ठीक। इफ यू फाइंड एनीथिंग दैट यू थिंक यार इंपॉर्टेंट, उसके जस्ट पिक्चर ले लो, स्नैपशॉट ले लो उसका, ठीक है ना बेटा? ठीक है। Okay, so inertia is another property of mass that resists change in velocity, और inertia mass पे डिपेंड करता है। inertia स्केलर क्वांटिटी है। अच्छा जी, inertia क्या है? अर्ज टू रेजिस्ट, है ना? अर्ज टू रेजिस्ट। मोमेंटम का अपोजिट है बेटा। मोमेंटम है अर्ज टू मूव। इनर्शिया क्या है? अबे नहीं यार, मोमेंटम है अबे चल यार, ठीक है? फर्क है दोनों में। इनर्शिया इज व्हाट? रेजिस्टेंस। चीरे चाह रहा, मतलब सुस्ती नहीं जो मोमेंटम है यार। वो सप्लाई कर रहा है, पर जो इनर्शिया है वो रेजिस्ट कर रहा है। हाँ, मोमेंटम क्या है? मूव मूव मूव। यस, मोमेंटम क्या है? अर्ज टू मूव। मोमेंटम इज अ प्रॉपर्टी ऑफ मूविंग मास दैट रेजिस्ट अ चेंज इन मूविंग ऑब्जेक्ट्स वेलोसिटी। वो कहता है वेलोसिटी चेंज नहीं करना मेरी, मुझे चलते रहने दो, मुझे चलते रहने दो, वेलोसिटी चेंज नहीं करना मेरी, ठीक है? कांस्टेंट वेलोसिटी पे। जो जो भी वेलोसिटी बढ़ा हुआ वेलोसिटी, मोमेंटम कहता है चलने दो उसके साथ, ठीक है जी? मोमेंटम इज अ वेक्टर क्वांटिटी। मोमेंटम इज व्हाट? वेक्टर क्वांटिटी। वेक्टर Vector क्वांटिटी। शाबाश। अब देखो बेटा, हमारे पास एक केस आया। अब वी हैव टू बॉल्स, एक बॉल ए है, एक बॉल बी है। बॉल ए जो है उसका मास 1 kg, बॉल बी उसका मास भी 1 kg। लेकिन बॉल ए जो है उसकी स्पीड 1 मीटर पर सेकेंड है, और बॉल बी की स्पीड है 3 मीटर पर सेकेंड। अब तुम दोनों बॉल्स को सेम फोर्स से पुश करो। अगर तुम 1 न्यूटन की फोर्स दोनों बॉल्स पे अप्लाई करो, तो आपके ख्याल में कौन सी बॉल आपकी फोर्स को सपोर्ट करेगी, आपकी फोर्स को ओबे करेगी? सर जिसकी 1 मीटर पर सेकंड स्पीड है। नहीं, आप ये कहें जिसका मोमेंटम कम है। राइट आंसर इज व्हाट? द बॉल विद लेस मोमेंटम विल बी अफेक्टेड मोर बाय द फोर्स। Yes, sir. जिस बॉल का मोमेंटम ठीक है। कम होगा, दैट विल बी अफेक्टेड मोर बाय द फोर्स। क्लियर है बॉयज? यस सर। ओके जी, आगे Yes, sir. चलते हैं। नाउ देयर इज अनदर थिंग कॉल्ड काइनेटिक एनर्जी दैट यू मस्ट रिमेंबर। ये भी हमने पढ़ा नहीं है, हम पढ़ेंगे आगे जाके। लेकिन काइनेटिक एनर्जी इज आल्सो रिलेटेड विद द टर्म मोमेंटम। ये इससे रिलेटेड है बेटा, यहाँ तो बात क्लियर है? यस सर। आगे चलते हैं बेटा इसके बाद हम। ओके जी, नाउ वी हैव calculating momentum. How to calculate momentum? We know that formula momentum is P is equal to mass into velocity. P is momentum measured in kilogram meters per second. Mass is measured in kgs. Velocity is measured in meter per second. Just plug in the values and you will get the answer. Whenever you have formula, plug in the values, you will get the answer. Right? यस सर। Good. Yes, sir. Now let's see here. We have two objects. One is a biker, the other is a car. The car is traveling at a velocity of 30.5 meters per second.
north on a straight road. The mass of the car is 1,300 kg. Whereas a motorcycle passes the car at a speed of 30 meters per second. The motorcycle with the rider has a mass of 350 kg. Now calculate and compare their momentum. बहुत आसान है. आपने कहा मोमेंटम का फॉर्मूला क्या होता है? मास इंटू वेलोसिटी. तो आप यस सर. कार के लिए कार के मास को कार की वेलोसिटी से मल्टीप्लाई कर दो, गेट एन आंसर. आप बाइक के लिए बाइक के मास को बाइक की वेलोसिटी से मल्टीप्लाई कर दो, यू विल हैव एन आंसर. एंड यू कैन इजीली चेक दैट car has more momentum. Why? Car has more momentum because it was massive. It had more mass. या मतलब सर इसका inertia कितना ज्यादा होगा सर? क्या कह रहे हैं? या inertia इसका इतनी ज्यादा होगा, वो रेजिस्ट करेगी इतने मोमेंटम में चेंज करने को. राइट? एनी प्रॉब्लम सो फार? ओके. एनी प्रॉब्लम विद एनीवन बॉयज? किसी No, बच्चे के साथ मसला समझ आपको सब समझ में आ रहा है बेटे? नो सर. एनीवन Yes, हैविंग एनी sir. इशू? No, sir. ओके बेटा, आगे Yes, sir. चलते हैं. कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम, दैट वी डिस्कस इन द क्लास, दैट लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम. आप लोगों ने क्लास 8 में पढ़ा था लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी. यू रिमेंबर दैट? No, sir. बेटा आप लोगों ने पढ़ा होगा ना क्लास 7th में, 6th में, 8th में, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी. ओके, मैं आपको बता Yes, देता हूँ. द लॉ सेज दैट एनर्जी of a system is always constant. Energy can neither be created nor be destroyed. इसी तरीके से we have a law of conservation momentum. What it says that for an isolated system of interacting objects, ठीक है जी, मीन्स वो सिस्टम जिसमें बाहर की फोर्सेस का इंटरेक्शन ना हो रहा हो, ऐसे सिस्टम का टोटल मोमेंटम हमेशा कांस्टेंट रहता है, कैन नॉट बी चेंज्ड. Now this is a very good example. आप में से किसी ने इसको ऑब्जर्व किया है आज तक या नहीं किया? If for example Omar is standing on a skateboard, आप एक स्केट के ऊपर खड़े हुए हैं, ठीक है बेटा. अब उमर आप चाहते हैं कि आप मूव करें. Now there are two ways. Either आप अपने पाँव से पुश करेंगे अपने आप को, या आप किसी से कहेंगे मुझे पुश करो. Agreed or not? Yes, sir. अब अज्यूम करो कि नीचे पानी है, नीचे जो है आप पाँव में रखना नहीं चाह रहे, एंड देयर इज नो वन नियर यू. अब आप कैसे मूव कर सकते हो? द बेस्ट अप्रोच इज एक्सप्लोजन टेक्निक. व्हाट वाज एक्सप्लोजन टेक्निक? वेयर वाज द बुलेट इनिशियली? इन द गन. सर वो फायर करने की वजह से जो उसकी फोर्स आई थी. हाँ, द बुलेट वाज इनिशियली इन द गन ना. यस सर. जब आप फायर करते हो बुलेट फॉरवर्ड जाता है और गन बैकवर्ड जाती है. अब आप क्या करो, आप एक मास को होल्ड कर लो, एक पत्थर को पकड़ लो अपने हाथ में. अब जब उस पत्थर को लाइक अ बुलेट आप फेंकोगे तो पत्थर फॉरवर्ड जाएगा और आपको उसका रिस्पेक्टिव मोमेंटम बैकवर्ड पुश करेगा. मतलब अगर ऐसा मुझसे आई की तरफ फेंकेंगे तो हम उसकी फोर्स की वजह से उसका अकॉर्डिंग टू थर्ड लॉ बैकवर्ड लगेगा. जितना इंपल्स आप स्टोन को दोगे उतना इंपल्स आप पे आएगा और आप बैकवर्ड जाओगे. ओके सर. अंडरस्टूड बाय एवरीवन? यस सर. सरफेस होना चाहिए, वो बिल्कुल ग्रीसी होना चाहिए. नहीं, देखिए उसने क्या कहा है यहाँ पर. व्हेन द सिस्टम, यहाँ देखिए, अगर आप इसको यहाँ पर देखेंगे, इट सेज ऑब्जेक्ट इज नॉट इन्फ्लुएंस्ड बाय आउटसाइड फोर्स. कोई बाहर की कोई फोर्स नहीं लग रही है, लाइक फ्रिक्शन की कोई बात नहीं हो रही है. ओके सर. ओके जी, नेक्स्ट पे चलते हैं. नाउ वी हैव दैट वी हैव लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम को समझने के लिए वी हैव टू अंडरस्टैंड द कोलिजन. व्हाट इज कोलिजन? A collision is actually a contact of two objects. Whenever two objects which are in motion, when they hit each other or they come in contact with each other, we say they are being collided. Right? And किसी भी दो एक साथ टकराना. कोई भी दो ऑब्जेक्ट का, whether they are moving in the same direction or in the opposite direction, if somehow they touch each other, they hit each other, we say it is a collision. We say it is a collision. Collision जो है, during the collision momentum is transferred. मतलब एक ऑब्जेक्ट का मोमेंटम दूसरे में ट्रांसफर हो जाता है. एक सिस्टम का मोमेंटम सिस्टम के एक एंड से दूसरे एंड पर ट्रांसफर हो जाता है. राइट? Collisions are of two types, elastic and inelastic. Now keep in mind that when we say elastic, तो elastic का मतलब होता है
कि उसमें ऑब्जेक्ट जो है वो गेट सेपरेटेड हो जाएंगे, ऑब्जेक्ट जो है वो गेट सेपरेटेड हो जाएंगे। तो दिस वन इज इलास्टिक एक्चुअली, ठीक है जी। और अगर इसकी बात करें, व्हेन द ऑब्जेक्ट्स गेट अटैच्ड, जब ऑब्जेक्ट चिपक जाएंगे आपस में, गेट कनेक्टेड विद ईच अदर, तो इसे कहते हैं इनइलास्टिक। याद रहेगी बात? बोला सर अगर दो बॉलें एक साथ टकराए आपस में हाँ, और वो डायरेक्शन में चली जाए तो वो इलास्टिक फोर्स होगी। अगर डिटैच हो जाएं, टकराने के बाद अलहदा हो जाएं, तो वी से इट इज इलास्टिक। लेकिन अगर टकराने के बाद चिपक जाएं और एक साथ मूव करें तो उन्हें कहेंगे इन इलास्टिक कोलिजन। क्लियर है? यस एनी प्रॉब्लम विद यस एनीवन? सर। यस सर, लेकिन बोलो। अगर जैसे दो ऑब्जेक्ट्स एक साथ कोलाइड हुए हम्म तो फिर मतलब कि जो मोमेंटम है वो हम्म एक्सचेंज कैसे होगा, क्योंकि साइज we will prove it. We will prove it, beta. We will prove it. No issue. No issue. Now ओके। we have these two formulas. I gave you the class as well. This was for the elastic collision and this was for the inelastic collision. Right? Take a picture of this thing. Please take a picture quickly. अपने मोबाइल से आप लोग पिक्चर ले रहे ताकि आपको कॉपी करना बहुत टाइम लगेगा। सर ले ली। Okay, जी. Now if you यस know, सर, डन। देखो, सर ले ली। all right, that's good. Beta, see, these were the two objects. If I just draw it here, this object is coming here, and this object is coming here, for example. Okay, what will happen at some time they will be in I'm sorry. Okay, I'll go back. Okay, at some point they will be in contact with each other. ये इधर आ जाएगा, ये इधर आ जाएगा. Agreed or not? Clear? यस सर। And they will be this ये ऐसे यानी कि चिंगारियां से निकल रही हैं, right? These two are striking each other, right? यस सर। Now we know, according to Newton's third law, whenever objects apply a force, then if this object is applying a force onto this object F1, so this object is also applying the same force onto this object, isn't it? यस सर। So when forces sir. are equal, बेटा, तो उनका मोमेंटम भी इक्वल होगा, बिकॉज नेक्स्ट स्लाइड में देखेंगे कि फोर्स और मोमेंटम आपस में एक ही हैं। फोर्स और चेंज इन मोमेंटम एक ही होता है, राइट? ओके। तो चेंज इन मोमेंटम जब हम बात करेंगे तो दैट इज द सेम थिंग। इज इट ओके बॉय? यहाँ तो कोई प्रॉब्लम किसी बच्चे को? नो सर। गुड। नो सर। सो वी हैव टू। सवाल है। हाँ बोलो बेटा, बोले। सर दो बॉलें एक साथ टकरा जाती हैं तो उसमें एक्शन फोर्स देगी और रिएक्शन कौन सी देगी? नहीं, वी डोंट केयर अबाउट कौन सा एक्शन है कौन सा रिएक्शन है, इसमें बोथ फोर्सेस आर अप्लाइंग द सेम थिंग, राइट? दोनों सेम अप्लाई कर रहे हैं। ओके जी, वी गो फर्दर। ओके जी, इलास्टिक कोलिजन हमने देखा। फॉर एग्जांपल, आपके पास ऑब्जेक्ट m1 था, उसकी वेलोसिटी v1 थी, और ऑब्जेक्ट m2 था, उसकी वेलोसिटी v2 थी। कोलाइड किया, कोलाइड करने के बाद m1 तो अपनी ही डायरेक्शन में मूव करता रहा एक नई वेलोसिटी के साथ, और m2 रिटर्न कर गया। इट्स आल्सो पॉसिबल, ऐसा होता है ना? ऐसा होता है ना बेटा? यस सर होता है। गुड। यस सर होता। m1 बेटा यहां से एक ऑब्जेक्ट मूव कर रहा था, m2 उसकी तरफ आ रहा था, दे हैड अ कोलिजन। आफ्टर कोलिजन व्हाट हैपेंड, m1 अपने ही पॉइंट डायरेक्शन में चलता रहा और m2 जो रिबाउंड हो गया। मतलब सर M2 की जो मोमेंटम था वो कम था M1। हाँ, अल्टीमेटली ना मोमेंटम कम ही होगा, लाजिम बात, जब भी तो रिबाउंड हुआ, उसका इंपैक्ट कम हुआ उसके ऊपर, ठीक है ना? यस सर। ओके जी, लेट्स डिस्कस दिस थिंग, लेट्स डिस्कस दिस थिंग। ओके जी, हमारे पास m1 कितना है बेटा? assume m1 भी 0.165 है, m2 भी 0.165 है, दोनों भी both are have the same mass. However, speed of object m1 was 0.5 meter per second and speed of object m2 was 0.7 in the opposite direction. माइनस का मतलब होता है opposite direction। माइनस का मतलब क्या होता है? Opposite direction. ओके जी, आफ्टर कोलिजन क्या हुआ? हमें m1 की स्पीड फाइंड करनी है, m2 की स्पीड उसने बता दी 0.4 इन द सेम डायरेक्शन। आपने कुछ नहीं किया, यू जस्ट प्लग इन द फॉर्मूला। कौन सा फॉर्मूला? इस वाले फॉर्मूले में, द टॉप वाला फॉर्मूला, ये वाला, इसकी बात कर रहा हूं मैं, इस वाले फॉर्मूले की बात कर रहा हूं।
इस वाले फॉर्मूले में आपने वैल्यूज पुट कर दी इस वाले के अंदर, ठीक है। सॉरी मैं कहाँ गया, आपने 3 लिखवाए थे। जी जी, राइट, इस वाले फॉर्मूले में वैल्यूज पुट कर दी आपने, ठीक है जी। तो यू प्लग इन द वैल्यूज एंड यू गेट द आंसर। यहाँ तक बात क्लियर है? यस सर। ऑलराइट, अच्छा जी। अब हम इसके बाद चलते हैं inelastic collision. What is an inelastic collision? It is a collision in which two objects stick together after collision. हुआ क्या? We had one trolley of mass 8,000 kg moving with the speed of 10 meter per second. Other trolley was at rest with a mass of 2,000 kgs. ठीक है जी? When they strike, what happens? They stick together. और स्टिक टुगेदर करने के बाद जो पीछे वाली ट्रॉली थी उसका मोमेंटम इतना ज्यादा था कि उसने आगे वाली ट्रॉली को पुश करते हुए मूव करना शुरू कर दिया। मींस दे कंबाइन टुगेदर और एक साथ मूव करना शुरू कर दिया उन्होंने, ठीक है जी। सो whenever two objects stick together, तो हम जो फॉर्मूला अप्लाई करते हैं वो ये वाला अप्लाई करते हैं, m1v1 plus m2v2 is equal to m1v1 plus m2v2 combined mass into speed 3. ओके ना, the revised version, या जब इसका मैंने जो आपको फॉर्मूला लिखवाया था क्लास के अंदर, इफ यू रिकॉल, वो फॉर्मूला क्या था बेटा? वो कुछ इस तरीके से था कि m1 u1 plus m2 u2 is equal to bracket m1 plus m2 times capital V. Remember this formula, boy? Yes, sir. तो इसी फॉर्मूला में वैल्यूज पुट करेंगे and you will get the answer. देखे ना, ये आपका 8,000 क्या है? m1, 10 क्या है उसका? u1, ठीक है जी। 2,000 क्या है? m2, और 0 क्या है उसकी? चूंकि स्टेशनरी था उसकी स्पीड 0 है, और ये वाली चीज यहाँ डिवाइड करेगी नीचे आके, तो m1 प्लस m2 डिवाइड कर दिया, विल गेट द आंसर ऑफ 8 मीटर्स पर सेकेंड। आर यू गेटिंग इट और नॉट? यस सर। अच्छा ये देखो, ये जो है ये 2 डायमेंशनल कोलिजन है, दिस इज इन ए लेवल्स, तो लकीली आप लोग ये अभी नहीं करोगे, तो इसलिए मैं आपको नहीं करवा रहा, ये ठीक है जी। आगे चलते हैं। रोहेल, अच्छा कौन अंदर दोबारा एंटर हुआ है? रोहेल चला गया था क्या? ओके, नो इश्यू। ऑलराइट, फोर्स क्या होती है बेटा? अच्छा बॉयज, अगर फॉर एग्जांपल मैं एक काम करता हूँ, उमर को, आई एम जस्ट गिविंग जस्ट 1 sec इफ यू अलाउ मी, मैं उमर को कुछ देर के लिए एडमिन बनाता हूँ, होस्ट बनाता हूँ, ठीक है, और मैं लीव करता हूँ, और फिर जो है क्या नाम है, अल्लाह आपका भला करे, मैं दोबारा आपको जो है वो रीसेंड करूंगा कोड, तो उसमें फिर आप दोबारा लॉग इन कर जाएंगे। इज इट पॉसिबल? आप बात समझ रहे हैं मेरी? ओके सर। उमर आप समझते हैं? Okay, तरह sir. हो जाएगा ना इस तरह से? पता है आपको? नहीं पता? जी सर मुझे पता है, मुझे एडमिन बनाएंगे तो जो भी बंदा है मेरे पास की रिक्वेस्ट आएगी तो उसको मैं एक्सेप्ट कर लूंगा। हम्म, ठीक है ना बेटा। तो मैं ओके। इसको जैसे ही 1 मिनट रह जाएगा मैं आपको एडमिन बना दूंगा, ठीक है ना। अच्छा जी, फोर्स इज द रेट ऑफ चेंज ऑफ एडमिन मोमेंटम। बना लीजिए। हाँ, अच्छा जी, मोमेंटम जो है वो चेंज हो जाता है जब भी फोर्स अप्लाई की जाती है, याद रखिएगा। मोमेंटम चेंजेस व्हेनेवर अ फोर्स इज अप्लाइड टू इट। इनवर्स, इसका अपोजिट क्या है? मोमेंटम, इफ मोमेंटम चेंजेस, इसका मतलब है फोर्स जनरेट हो रही है। बोथ आर ट्रू। अगर फोर्स लगाओगे तो मोमेंटम चेंज हो जाएगा, लेकिन अगर तुम मोमेंटम चेंज करोगे तो इसका मतलब फोर्स जनरेट हो जाएगी। क्लियर है? यस सर। ओके, अब इसको देखते हैं। नाउ वी नो अकॉर्डिंग टू न्यूटन सेकंड लॉ, F इजिकल टू एम ए होता है, याद है ना? F इजिकल टू एम ए, देखा था ना आप लोगों ने ये वाला? जी सर Yes, sir. याद है। शाबाश Yes, sir. बेटा। ए क्या होता है मुझे बताओ, शाबाश। Acceleration. Acceleration. फॉर्मूला क्या है? Force is equals to mass into acceleration. नहीं, सर एक्स से एक्सेलरेशन का फॉर्मूला क्या है? V माइनस यू अपॉन टी। Yes, sir. V minus U upon T. ब्रैकेट खोलो, क्या बन जाएगा? क्या बन जाएगा? एम वी माइनस एम यू अपॉन टी बनेगा। Yes, sir. एम वी को क्या कहते हैं? मास इंटू वेलोसिटी क्या कहते हैं हम लोग? Momentum. मोमेंटम। तो ये हो गया फाइनल मोमेंटम और ये हो गया इनिशियल मोमेंटम। Okay, sir. तो फाइनल मोमेंटम माइनस इनिशियल मोमेंटम क्या बनता है? क्या कहते हैं उसको हम?
change in Difference. momentum. What do we call it? चेंज इन मोमेंट। Momentum. हाँ, तो इसका मतलब ये हुआ कि F इजिकल टू एम में दरअसल ये वाला फॉर्मूला इज द सेम, यानी कि इधर यू राइट F इजिकल डेल्टा P अपॉन डेल्टा T और यू राइट F इजिकल टू एम में द सेम थिंग, नॉट अ बिग डील। क्लियर है? यस सर। अब ये डेल्टा T यहाँ डिवाइड कर रहा है, इसको मैं यहां से उठा के, अगर यहां से उठा के यहां लेके चला जाऊं, F से मल्टीप्लाई करेगा यस सर। तो क्या हो जाएगा? F इंटू डेल्टा T इज इक्वल टू F इंटू डेल्टा T इज इक्वल टू डेल्टा P बन जाएगा बेटा। जी सर। सर ये इम्पल्जन के लिए इस्तेमाल। हाँ, F into delta T is called impulse. F into delta T is called इम्पल्जन। impulse, right? Impulse. F into delta T is called impulse. So impulse of a force is equal to the change in momentum. Clear? Sir, the impulse mean the force effect for how much time it is? Yeah, exactly. Impact of force for a certain duration. For how long the force was applied? That's the impulse. ठीक है? Go further. अच्छा जी, यहां तक हमने देख लिया बेटा, इसमें कोई मसला, कोई प्रॉब्लम? अच्छा, दिस इज नॉट इन सिलेबस, सो विल स्टॉप हियर। Thanks for watching.